The last lecture, it was regarding the Larmor precession. I have also uploaded a video of the Larmor precession to understand how the precession of the spinning nuclei that takes place in a magnetic field. That precessing nuclei is precessing with a particular frequency. If we apply electromagnetic radiation from the outside, then that radiation, if having the same frequency as the frequency of precession, then there can be absorption of radiation, and by that we can get the NMR spectra. So whenever I am going to discuss the Larmor precession or Larmor frequency, it should be kept in mind that we are discussing a magnetic dipole that is being left in a magnetic field. As the magnetic dipole is left, which magnetic dipole? Nuclear magnetic dipole, because a spinning nucleus is just like a magnet. So that magnetic dipole which is left in a magnetic field, then that magnetic dipole either align itself with the applied magnetic field or it opposes that applied magnetic field. That depends upon its orientation, whether it is having the plus half sign of the spin or minus half sign of the spin, or spin is clockwise or spin is anti-clockwise. The spinning nuclei is just like a gyroscope. Gyroscope आप वैसे नेट में देख सकते हैं कि gyroscope क्या चीज होती है. What gyroscope is a spinning material that is also rotating about some another axis, and the nuclei can be considered as a frictionless gyroscope. So that gyroscope start precessing around the applied magnetic field, either in the aligned state or either in the opposed state. What is the precessional frequency? That precessional frequency is given by the relation. It is equal to magnetic moment divided by the angular momentum multiplied by the applied magnetic field. That is the precessional frequency. If you substitute the value, omega is equal to mu is the magnetic moment. It is I is the angular momentum, Bz is the applied magnetic field with a factor of 2 pi. So here it is in the radian per second. From here omega comes to be equal to this. Substitute the value of the mu I. It is Z into beta n. G, that is the reflection of the gyromagnetic ratio, as well as it is the mass defect of the nuclei. Beta n is the nuclear magneton, and I into I plus 1 into h upon 2 pi, that is the angular momentum. Bz is the applied magnetic field. So from here it is omega that comes to be equal to Z into beta n into Bz into h. So that is the precessional frequency of the nuclei. अगर आप पीछे रिवाइंड करें तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी और जो गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स है दैट इज बीइंग इक्वल. जो गैप है बिटवीन द टू स्टेट दैट इज बीइंग इक्वल. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके स्पिन स्टेट को क्या करता है? स्प्लिट करता है. एक स्पिन स्टेट अलाइंड होती है, दूसरी नॉन अलाइंड होती है, और उनके बीच में जो गैप है दैट गैप मैचेस विद द दिस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी. देन वी से इट इज ए वन टाइप ऑफ रेजोनेंस. जो प्रिसेसिंग न्यूक्लियाई है उसकी फ्रीक्वेंसी और स्पिन स्टेट्स, जो दो स्पिन स्टेट हैं, एक प्लस हाफ वाली अलाइंड और एक नॉन अलाइंड स्टेट, उनके बीच में कितना गैप है, दैट गैप इफ मैचेस देन इट इज टर्म्ड एज ए वन टाइप ऑफ रेजोनेंस. क्या बोलते हैं इसको? वन टाइप ऑफ रेजोनेंस. If it is concerned with the nucleus, we say it is nuclear magnetic resonance. If it is concerned with the electron, we say it is electron spin resonance. What I said, I am repeating again. जब आपने न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो वो या तो अलाइंड स्टेट में आ जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, या नॉन अलाइंड स्टेट में आ जाएगा. अलाइंड और नॉन अलाइंड स्टेट
स्पिन स्टेट की दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक हायर एनर्जी स्टेट और एक लोअर एनर्जी स्टेट. सो some nuclei they are having the higher energy state and some they are having the lower energy state. As already stated that population of two states it is nearly equal. Whenever such a situation occurs, then there can be a transition from the lower state to the upper state. How it occurs? It occurs by the absorption of radiation. So what type of radiation we can use? We can use a radio frequency wave here, so that is having the similar size or similar energy level as the gap between the two spin state is there. If it matches, then there is a transition from the one level to the another level, and that transition can be recorded and that can give the absorption spectra of the particular type of the nuclei. तो इसमें जो है वो रेजोनेंस का मतलब है कि पर्टिकुलरली जो एनर्जी है वो मैच होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी जो वो ये मैच होना चाहिए. अगर मैच नहीं होगा तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो पॉसिबल नहीं है. दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड द वर्ड द रेजोनेंस. जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम, कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम. तो इसके दो मेथड है जिससे आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा जो रिकॉर्ड कर सकते हैं. पहला मेथड क्या है कि हर एक न्यूक्लियाई जो है उसका प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो वो डिफर करेगी पर्टिकुलरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे. रीजन बीइंग हर एक न्यूक्लियाई का एनवायरनमेंट जो वो डिफर करता है. तो पहला तरीका तो ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो और वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यूटिलाइज कर लो. तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे एक न्यूक्लियाई जो प्रोसेस करेगा, किसी पे दूसरा करेगा, किसी पे तीसरा करेगा. क्यों अलग अलग पे करेंगे? क्योंकि सबका जो एनवायरमेंट है, किस एनवायरमेंट में प्रोटॉन है, आगे डिस्कशन में आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे जो है वो रेजोनेंस उसमें जो है वो पॉसिबल है. दूसरा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जितना की वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज हो रही है वो किस मैग्नेटिक फील्ड पे जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए रेजोनेंस जो वो प्रोड्यूस करेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जा सकता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो है वो वेरी किया जा सकता है. तो दोनों ऑप्शन होती हैं. यूजुअल तौर पर हर एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज पे जो वो ऑपरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो वो वेरी की जाती है. सो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरीड एंड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट ऑपरेट्स ऑन ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द 100 मेगाहर्ट्ज. या तो 60 मेगाहर्ट्ज यूटिलाइज होता है, बट मोस्टली जो है वो अब 100 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो वो आते हैं. So again come to the point that we are having a system of the nuclei. आपके पास जो वो एक सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियर या केमिकल है, उसमें प्रोटॉन्स हैं या कार्बन है या ऑक्सीजन है या डिफरेंट एटम्स है जो कि NMR एक्टिव है, वो जो वो आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है. तो उससे क्या होगा कि उसकी ग्राउंड स्टेट में भी कुछ एक न्यूक्लियाई होंगे, उसकी एक्साइटेड स्टेट में भी कुछ एक न्यूक्लियाई होंगे. जो अपर स्टेट होगी वो अपोज्ड वाली आएगी और जो लोअर स्टेट होगी वो क्या है, अलाइंड वाली स्टेट आएगी. हमेशा जो ग्राउंड स्टेट होती है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होती है और जो अपर स्टेट होती है वो कम पॉपुलेटेड होती है. जो अलाइंड स्टेट है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी. तो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन वो पॉपुलेशन क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जा सकती है. मींस कि लोअर पॉपुलेशन जो वो अपर पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए. कैसे? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, तो जैसे ही वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें कुछ एक न्यूक्लियाई जो है वो कहां चले जाएंगे, अपर स्टेट में चले जाएंगे. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही जो है वो अपर स्टेट के लिए जो है वो मूवमेंट होगी. देयर मे बी ए मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई
फ्रॉम द हायर स्पिन स्टेट टू द लोअर स्पिन स्टेट, दोनों तरफ को जो है वो ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। लेकिन ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए अपर की साइड जाने के लिए जो है वो ट्रांजिशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जब थोड़ा बहुत सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया तो अपर स्टेट और लोअर स्टेट की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस स्टेज पे जो है कोई भी ट्रांजिशन जो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेट जो है वो उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, इक्वलिटी में आ गई है। इसमें जो है वो आप इसको द्वारा थर्मल स्टेट पर ला सकते हैं। थर्मल स्टेट कौन सा है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है। तो कैसे लाया जा सकता है, इसमें फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, या फिर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी और अप्लाई कर दो, उसमें और वेव अप्लाई कर दो, जिससे कि वो इंटरेक्ट करे सिस्टम के साथ और उसको द्वारा थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले आए। जब आप इस तरह से फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी की कोई और वेव यूटिलाइज करते हैं, तो उससे जो है वो एक्सेस पॉपुलेशन जो ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो गई है, दैट अगेन कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। इसमें जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो अमिट होगी, क्योंकि अपर स्टेट से न्यूक्लियाई जो है वो लोअर स्टेट में आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, ये तब हुआ जब आपने फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया या कोई और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वेव जो वो आपने अप्लाई की। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आता है उसको इंड्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, या एनएमआर इंडक्शन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एनएमआर इंडक्शन स्पेक्ट्रम। So that is regarding the Larmor frequency as well as it is the spin resonance। यहां एक थोड़ा सा मैंने आपको स्पिन रेजोनेंस शो करने का जो मेथड डिवाइस किया है फिगर के तौर पर। सो सी हियर, दिस इज द न्यूक्लियाई दैट इज इन द स्पिन मोशन, सो दैट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। So whenever a magnetic field is applied, so this is the south pole of the magnetic field above, and that is the north pole of the magnetic field. So either this align itself with the applied magnetic field, or so this is the lower portion here, I think visible होना चाहिए आपको ये। So it is in the aligned state here downward. So this is the north pole of the applied magnetic field. So it is aligning with the south here. तो इसको क्या बोलेंगे, aligned state बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, aligned state। और it may not align itself with the applied magnetic field. So that state is the opposing state. तो जो aligned state है वो ग्राउंड स्टेट आएगी, और जो नॉन अलाइंड स्टेट है वो अपर स्टेट आएगी। तो ये दो स्पिन स्टेट को जो वो सिग्निफाई कर रहा है। एक में स्पिन ऊपर की तरफ में है, एक में स्पिन डाउन की तरफ है। वन इज प्लस हाफ, अनदर इज द माइनस हाफ। ये स्पेशली उसी एक ही प्रोटॉन के लिए यानी हाइड्रोजन के लिए कंसीडर हो रहा है, बाकी न्यूक्लियाई के लिए नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं इसको। पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है ये। सो आइदर इट इज अलाइनिंग और आइदर इट इज अपोजिंग। तो जैसे ही आप बाहर से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज करते हो, देन देर इज ए शिफ्ट ऑफ द this change of this nuclei from the ground state to the upper state. So as you are applying the radio frequency, this atom or this nuclei from the ground state, it is being lifted to the upper state. So in this way, there is a absorption of the radiation, and the nuclei, it moves from the one spin state to the another spin state. अब ये जो स्पिन स्टेट आ गई, इस स्पिन स्टेट को द्वारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जा सकता है। हाउ, अगर हम एक और रेडियो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज करें या फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये द्वारा अपनी स्टेट में आ जाएगा। पर जब द्वारा अपनी स्टेट में आएगा यहां पर, तो वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और इट विल लूज एनर्जी। तो वो जो स्पेक्ट्रा आएगा, दैट इज द इंडक्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन स्पेक्ट्रा, बिकॉज that spectra is being the induced by the fluctuating magnetic field
or it is induced by the application of the radio frequency. Then the concept of the relaxation time is there. जब आपके एक सिस्टम कंसीडर कीजिए जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो ये सामने आपके सामने दो स्टेट्स मैंने शो की हुई हैं. एक स्टेट ग्राउंड स्टेट है, एक उससे नेक्स्ट हायर अपर स्टेट आ रही है. दोनों में जो वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन ओरिएंटेशंस जो स्पिन की ओरिएंटेशन है वो इनकी क्या है, रेंडम है. अगर रेंडम है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है. देयर इज नो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट अस डू समथिंग दैट bring this system of the nuclei under the magnetism. So I here apply the magnetic field. So one north pole down and south pole above. So this is the magnetic field. What will happen that all of them momentarily either they will align with the applied magnetic field or they will oppose the applied magnetic field. जो इससे पहले की स्टेट है आपके पास, that is the state in which there is a random orientation. Once you are applying the magnetic field, either it is aligning itself with the applied magnetic field or it is opposing the applied magnetic field. So all the nuclei, they are now present in a different state. अब इसको अगर सिस्टम को हमने वैसे अंडरस्टैंड करना है तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. एक स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है. आपने इमीडिएटली उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. दैट इज ए जाइरोस्कोप. तो जाइरोस्कोप में जो स्पिनिंग बॉडी है वो अपनी एक्सिस को जो वो टिल्ट होने नहीं देगी. किसके अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन टिल्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, दैट विल स्टार्ट प्रिसेसिंग अराउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड. वो जो उसके अराउंड क्या करना शुरू कर देगा, प्रिसेस करना स्टार्ट कर देगा. तो जब तक इसमें क्या होगा कि जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश था. कौन सा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस वाज ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. पहले ही की ग्राउंड स्टेट में इतने हैं, अपर स्टेट में इतने हैं, दैट वाज ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. What once you introduce the magnetic field, then that system has been disturbed. Now there is a polarization. Polarization का मतलब क्या हुआ, उसकी जो ओरिएंटेशन थी या तो वो अलोंग हो गई या क्या हो गई, अपोज हो गई. तो इस सिस्टम को द्वारा अगर आपने जो वो थर्मल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द रेडियो फ्रीक्वेंसी हेयर. रेडियो फ्रीक्वेंसी मीन्स एक वेव यूटिलाइज करना पड़ेगी आपको, जिससे जो है वो ये जो स्पिन स्टेट इसकी चेंज हो गई है, दैट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू द हायर स्टेट एंड अगेन इट कैन रिलैक्स हेयर. तो इसका मतलब है कि अगर द्वारा इसको जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो या कोई वेव जो है वो यूटिलाइज करना पड़ेगी, ताकि वहां पर रेजोनेंस हो और रेजोनेंस के बाद वो किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए. पर अगर आप इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव यहां पर नहीं यूटिलाइज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो भी ये सिस्टम जो है थोड़ी देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. क्या मतलब हुआ कहने का, एक मैग्नेट है आपके पास, दूसरी आपके पास एक और मैग्नेट है. जैसे आप एक बिगर मैग्नेट को स्मॉल मैग्नेट के पास ले जाते हो तो उस मैग्नेट को अपनी तरफ जो क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपने आप. क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. जहां न्यूक्लियाई की बात है वहां पर न्यूक्लियाई जो है वो ओरिएंट हो चुके हैं किस डायरेक्शन में, आइदर इन द अलाइंड स्टेट आइदर इन द नॉन अलाइंड स्टेट. रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके आप जो पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुई है उसकी अपर और लोअर स्टेट में, उसको आप जो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में वापस ला सकते हैं. कैसे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम रेडियो फ्रीक्वेंसी. लेकिन अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने नहीं यूटिलाइज की या वेव नहीं यूटिलाइज की तो उससे क्या होगा, वो एक एक्साइटेड स्पिन स्टेट में रहेगा, जिसको हाई स्पिन टेम्परेचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाई स्पिन टेम्परेचर. तो उस स्टेट में रहेगा, उस स्टेट से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में द्वारा अपने आप आ सकता है. किस तरह से आ सकता है, देयर आर टू वेज by which it can again come to the equilibrium state, and that way is by the way of relaxation times.
किससे आएगा? रिलैक्सेशन से। वो किस तरह का रिलैक्सेशन होता है? रिलैक्सेशन का मतलब है कि पहले वो आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था, थर्मल इक्विलिब्रियम में थी। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका स्पिन या तो अलाइंड या नॉन अलाइंड में आ गई, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने यूटिलाइज नहीं की, तब भी वो जो है उस मोशन से रिलैक्स होकर के जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकती है। किस तरह से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन, वन इज स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, अनदर इज द स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। एक क्या होता है? स्पिन रिलैक्सेशन, दूसरा क्या आता है? स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होता क्या है? जो भी एक्सेस एनर्जी सिस्टम के पास आ गई है वाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है वो क्या है? डिसिपिएट हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसिपेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द एक्सेस स्पिन एनर्जी टू द सराउंडिंग और विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। कितनी फ्रैक्शन? 1/e, यानी 37% जो है वो एक्सेस एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो उस एनर्जी को डिसिपेट होने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसिपेशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ excess spin energy. What fraction? It is 0.37, that is 37% of the absorbed energy. तो सराउंडिंग के साथ डिसिपिएट या उसको नलीफाई करने के लिए या जीरो करने के लिए जो टाइम लग रहा है या डिसिपिएट होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन कैन बी ऑफ द टू टाइप, इट इज स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और इट इज द स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।